Yes, so we are about to start a very, very important chapter of chemistry. And why I call this a very important chapter is because uh, if I talk about the standard 10th Gujarat board and CBSE right now, the course has been reduced due to corona. बहुत कम टॉपिक्स है जो अभी हमें इस चैप्टर के करने हैं. मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आर ओमिटेड. But if you talk about 11th and 12th standard chemistry, then this chapter is very, very useful, especially iska nomenclatures, right? So everybody all set, and sit with your textbook, a notebook and a pen, and let's begin chapter number 4, carbon and its compounds, right? Now, before I start working on my notebook, first let us discuss about carbon. Okay, now students, the clothes that you wear, the food that you eat, the medicines that you take, the books that you read, हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी एटम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड ऑफ फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. राइट स्टूडेंट्स, सो कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सटाइल? वर्सटाइल मतलब यूनिक. जो कार्बन के पास प्रॉपर्टीज है ना, वो किसी के पास नहीं. सो दिस चैप्टर इज टोटली हॉवरिंग अराउंड कार्बन. पूरा कार्बन के बेस पे ही है. हमारे अर्थ्स क्रस्ट में कार्बन का प्रपोर्शन बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, ओनली 0.02%. even the atmosphere contains very less percentage of carbon dioxide, that is 0.03%. लेकिन फिर भी although it is very less, but इसका जो importance है ना, it is immense. बहुत ज़्यादा important है कार्बन. कैसे, क्यों, why? Let's start. Right. Yes students, good afternoon everyone. You all are wishing me good afternoon, but I want to focus on my work that we all have met today. So good afternoon, and yes, I going further. अब देखिए students, in 9th standard you have studied that अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, याद करो, they always lose electron and become which ion? Positive or negative? Atoms who have 1, 2 or 3 electrons in their outermost orbit, they always lose electron and become positive ion. Yes, very nice. And positive, not negative, positive. And the atoms who have 5, 6 or 7 electrons in the outermost orbit, they always gain electrons and become negative ions. Superb everyone. Yes, positive ion, सही रिप्लाई दे रहे हो. लेकिन अभी सुनिए, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड दे बिकम पॉजिटिव आयन. एंड ऑल द नॉन मेटल्स, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन. ये हमने सीखा है स्टैंडर्ड 9th. But today we are going to start something very important. कार्बन. अब एक बुक और पेन ले लो स्टूडेंट्स एंड प्लीज नोट डाउन. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक, सी व्हेन आई राइट यू ऑल्सो हैव टू राइट विथ मी. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना, इट इज 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 2,4. इन फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द क्वेश्चन इज,
whether carbon will lose 4 electrons or carbon will gain 4 electrons. कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा. So that is the question that I am going to answer. Is my question clear to everyone? Will carbon gain 4 electrons or will carbon lose 4 electrons? That is our question now. So for that let's understand more about carbon. Carbon, atomic number 6. 6 means उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 6 प्रोटॉन्स भी हैं. बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं. ठीक है, याद रखना कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है. सो लेट्स थिंक ऑफ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. if carbon loses 4 electrons, what is going to happen? If carbon lose 4 electrons, then what is going to happen? Right. So again you all understand that carbon has got 6 electrons. Out of 6 electrons वो lose कितने कर रहा है? 4. So how many electrons are left? 2. If carbon loses 4 electrons, then it will have only 2 electrons and number of protons will remain same. How many? 6. Number of protons will remain same. How many? 6. So if carbon loses 4 electrons, then there will be 2 electrons which are holding to 6 protons. I repeat, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऑर्बिट्स में और प्रोटॉन सेम रहेंगे 6. So 6 protons will hold to only 2 electrons, which is not possible. Okay, so if carbon loses 4 electrons, it means that there will be 6 protons holding to only 2 electrons. अब स्टूडेंट्स एक और बात जो आपको स्टैंडर्ड 9th में शायद आपको पता नहीं होगा. टू लूज इलेक्ट्रॉन एटम रिक्वायर्स एनर्जी. आई रिपीट, टू लूज इलेक्ट्रॉन एटम रिक्वायर्स एनर्जी. और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कार्बन को तो बहुत एनर्जी चाहिए. टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. अगेन दैट मच एनर्जी इट इज नॉट हैविंग. So because of this reason carbon cannot lose 4 electrons. तो अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ why carbon cannot lose 4 electrons. Right? So if carbon loses 4 electrons, it will form C4 positive anion. Anion मतलब पॉजिटिव आयन. वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो इट विल गेन +4 चार्ज. बिकॉज यू ऑल नो व्हेन वी लूज इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज पॉजिटिव. सो इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन it will become C4 positive anion. Right, it will form C4 positive anion, but it will require yes, thank you dear, it's not anion. Thanks for correcting me students, it is cation. Positive ion is cation, but it will require a large amount of energy. कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए एटम को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, राइट, जो उसके पास अवेलेबल नहीं है. मोर ओवर देयर विल बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे होल्डिंग टू 6 protons. So because of this reason carbon cannot lose 4 electrons. कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज नंबर 1 उसके पास इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं है, एंड सेकेंड अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है then there will be 2 electrons which are holding to 6 protons. Confirm? Let's come to the second case.
if carbon gains 4 electrons, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, so what? Right. Now, if carbon gains 4 electron, then what, students? Now keep in mind that अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, then it will form negative ions, C4 minus anion means negative ions. Okay, now students see, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहले उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10, राइट? It will form C4 negative anions, right? So there will be 10 electrons, there will be 10 electrons, और ये 10 electrons कितने प्रोटॉन्स को होल्ड करेंगे, कितने प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे? जस्ट सी, there will be 10 electrons holding to या attracting 6 protons. So again this is not possible, and that's the reason why carbon cannot gain 4 electrons, why carbon cannot gain 4 electrons and carbon cannot lose 4 electrons. Okay, देखो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फॉर्म C4 नेगेटिव एनायंस, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किए, टोटल विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग टू 6 प्रोटॉन्स. एक्चुअली यू हैव टू राइट देयर विल बी 6 प्रोटॉन्स होल्डिंग टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स हमेशा होल्ड करते हैं डियर. There will be 6 protons holding to 10 electrons. So because of these two reasons, carbon cannot gain 4 electrons, carbon cannot lose 4 electrons. In short, कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं कर सकता. ओके, इन शॉर्ट कार्बन कांट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. कार्बन कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता. तो कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? सो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कोवेलेंट बॉन्ड. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फॉर गुजरात बोर्ड एंड CBSE दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन क्या है? Why carbon cannot gain or lose 4 electrons? या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, Why carbon cannot form ionic bond? Why carbon cannot form ionic bond? Okay, so I'm explaining you covalent bond now. Let's begin. So everybody please, I'm explaining you covalent bond by giving many examples. The first example is, how is a molecule of hydrogen formed? How is molecule of hydrogen formed? Let's understand that. Right. So see students, hydrogen इसका atomic number होता है 1. Hydrogen has atomic number 1. Atomic number मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए कभी भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं दे सकता. नो एटम वॉन्ट्स टू बी विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना तो उसके पास बचेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल. राइट, तो व्हाट हाइड्रोजन डज, देखो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज़ वन मोर हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन.
Now both of them want to make a bond. So how they will make the bond? Let's see. Now both the hydrogen will share one electron. They both will share electron. मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये खुद का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, प्लस इसके पास वाला जो हाइड्रोजन है ना, उसका इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा. तो इस हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. एंड सेम विद दिस हाइड्रोजन ऑल्सो, ये खुद का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. सो इट विल ऑल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज हाउ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. तो क्या लिखना है एग्जाम में? हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1. इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सो 2 hydrogen atoms share 1 electron each. Share 1 electron each to form hydrogen molecule. I repeat, 2 हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे and they will form hydrogen molecule. Is that clear everyone? Sure. Any questions coming from your side? You can put up in the chat box. Okay. So this is how a covalent bond is formed in hydrogen molecule. Now moving on to oxygen molecule. The second topic that we are going to start is how is a molecule of oxygen formed. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सो स्टूडेंट्स, आपको है ना सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है. अगर एक बार एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा ना, रेस्ट एवरीथिंग विल बिकम वेरी क्लियर. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना है भाई? किसको याद है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? बताइए. क्या बात है यार, सब स्कॉलर्स, ऑल स्कॉलर्स, ग्रेट. So oxygen has atomic number 8. Now atomic number 8 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? You know what's इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? So its electronic configuration is 2,6. No, 242 is wrong. Not 242. It is 2,6. So its electronic configuration is 2,6. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स इट वांट्स टू कंप्लीट द ऑर्बिट? ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको? हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन इट वांट्स? यस, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. आई रिपीट, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. सो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट मी पुट 6 डॉट्स हियर. यहाँ पे मैंने 6 डॉट्स लगा दिए. देयर इज़ वन मोर ऑक्सीजन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट मी पुट 6 डॉट्स हियर. नाउ व्हेन बोथ ऑफ देम विल कंबाइन, सो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन. अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? आप सबने मेरे को रिप्लाई दिया है 2, राइट? इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए होते हैं ना, हमेशा वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. ओके, ऑलवेज इट विल, say for example this oxygen, say for example this oxygen has got 6 electrons, this oxygen has got 6 electrons and this oxygen also has 6 electrons, so it will share 2 electrons. तो 6 खुद के और 2 दूसरे से शेयर करेगा. I repeat, 6 of its own and 2 it will share from the other atom. Same way, this oxygen has got 6 electrons of its own and 2 it will share from other atom. So this is how oxygen molecule will be formed.
ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट। ये हमारे क्रिएटिव गेमर सर ने बराबर बताया कि जितना एटम की वैलेंसी होती है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है। जितना एटम की वैलेंसी है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है। जैसे इसकी वैलेंसी 2 है, सो इट विल ऑलवेज शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट परफेक्ट। सो व्हाट आई विल राइट, its electronic configuration is 2,6. Then two oxygen atoms, will share 2 electron each, and form oxygen molecule. So students, one more question that I want to ask you is that between two hydrogen atoms, how many electrons were shared? कितने electrons each atom was sharing? Only one. And because it was sharing only one electron, इसको बोलते हैं monovalent. I repeat, it is called monovalent. Monovalent means sharing of only one electron. So monovalent मतलब sharing of one electron. So if 2 electrons are shared, तो क्या बोलेंगे? If they share 2 electrons, then what we'll say? Yes, so oxygen is divalent, and I hope you all know divalent matlab they share 2 electrons. Hey, don't say binomial, maths यहाँ पे मत लेके आओ भाई साहब. It's not binomial, it is divalent. ठीक है? Yeah, so it is divalent. Is that clear? So oxygen molecule and hydrogen molecule. Now coming to the next one now. The third one is molecule of nitrogen. Molecule of nitrogen. Okay, so how is nitrogen molecule formed? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? तो चलिए अब मैं ये पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर फॉर यू. समबडी प्लीज टेल मी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? यस, ग्रेट. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. Yes, atomic number of nitrogen is 7. So what is the meaning of 7? Electronic configuration 2,5. So here I have put 5 electrons, and here also I am putting 5 electrons. 5 5. See, some students always ask me कि सर इसके आउटर मोस्ट और यहाँ पे आपने 7 डॉट्स क्यों नहीं लगाए? डॉट्स हमें उतने ही लगाते हैं, डॉट्स उतने ही लगाने हैं जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो. यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यू हैव टू पुट 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द नाइट्रोजन. ओके, नाउ व्हेन दे बोथ विल कंबाइन, सी नाइट्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, राइट. सो हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स? 3, करेक्ट. सो इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है. तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर करेंगे आउट ऑफ 5. तो 5 में से 3 डॉट्स मैंने लगा दिए, बाकी बचे 2. सो व्हाट दिस नाइट्रोजन विल डू, अपने 5 डॉट्स और 3 और एक्वायर करेगा, शेयर करेगा. सो 5 + 3 इज बिकमिंग 8. ओके, and here 5 + 3, that is also 8, right. So nitrogen molecule is formed by sharing of 3 electrons, and so it is trivalent. Tri matlab they share 3 electrons, so it is trivalent. Tetravalent नहीं बोलेंगे सर, tetravalent मतलब sharing of 4 electrons, so it is trivalent, राइट. अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2. नाउ समबडी इज आस्किंग मी, इज इट डाइवेलेंट
और डायएटॉमिक? ये डायवेलेंट है या डायएटॉमिक है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इज इट डायवेलेंट और डायएटॉमिक? एनीवन? Okay, I'll just reply for you. See, first of all, yes, very good answer. It's both. See, what is the meaning of divalent? Sorry, yeah, what's the meaning of divalent? Divalent matlab they are sharing two electrons each. So if you think of sharing of electrons, it is divalent. Okay, लेकिन डायएटॉमिक कुछ और होता है. डायएटॉमिक क्या होता है? देखो, जैसे हाइड्रोजन है ना, ये डायएटॉमिक. डायएटॉमिक मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में यू विल हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन इज ऑल्सो डायएटॉमिक बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूल बनता है ना, इट इज फॉर्म बाय 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज डायएटॉमिक. सो इज नाइट्रोजन डायएटॉमिक? यस और नो? इज नाइट्रोजन डायएटॉमिक? Yes, because nitrogen is also formed by 2 atoms of nitrogen. Nitrogen molecule है ना, it is formed by 2 atoms of nitrogen. So students, diatomic and divalent, trivalent, monovalent, ये सारे words clear? Yes, correct. What you have written about ozone is correct. It's triatomic. Okay, shall I go further now? So nitrogen, oxygen, hydrogen. Fine. Now you quickly everyone in your notebooks mention about chlorine. Chlorine का ऐसा structure बना दीजिए फटाफट. Please take your notebook and make such structure for chlorine, molecule of chlorine. Make a structure for molecule of chlorine. Yeah, I'll just give you idea. Atomic number जो होता है ना क्लोरीन का, वो 17 होता है. ओके, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. ओके, मतलब इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो द वैलेंसीज विल बी -1. वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सो लेट्स राइट 2 क्लोरीन. दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो सर. आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ बोथ हैज़ गॉट 7 electrons each. So how many electrons will they share? Only 1. तो ये इसके 7 electrons प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर करेगा. So 7 + 1 will be 8 and here also 7 + 1 will be 8. So this is how chlorine molecule is formed. So students please tell me monovalent, divalent, trivalent क्या होगा चाचा? परफेक्ट, यस. अरे मेरे भैया डायवेलेंट कैसे हुआ रोएरा? इट्स नॉट डायवेलेंट, इट्स मोनोवेलेंट बिकॉज दे आर शेयरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. यस, ओके, ग्रेट, फाइन. अब स्टूडेंट्स दिस आर द मॉलिक्यूल्स. डायएटॉमिक है सारे के सारे. क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. राइट. नाउ इन एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 मीथेन, and last number 5 sulfur molecule. So I'm going to explain you this 5 structures, how to make this 5 structures. Ready everybody? Ammonia,
water, carbon dioxide, methane and sulfur. Okay, I first begin with ammonia. वाधवानी इज आस्किंग मी कोवेलेंट बॉन्ड्स का पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है. कोवेलेंट बॉन्ड्स डू नॉट हैव एनी चार्ज बिकॉज इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओनली आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है ना, देन दे गेन चार्जेस, बट इन कोवेलेंट बॉन्ड इट हैज़ नो चार्ज, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव. ओके, first I start with ammonia. So number 1, ammonia. Formula of ammonia, students, is NH3. ammonia, it's NH3. Confirm? So क्या करना है आपको? You only have to draw. So take ammonia and put 3 hydrogens near to it. आसपास 3 हाइड्रोजन डाल दीजिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था स्टूडेंट्स? आई फॉरगॉट. आपको याद रहा? यस, 7. तो 7 मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सामने नाइट्रोजन भी उसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. सो हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके सामने नाइट्रोजन का भी आपको एक ही इलेक्ट्रॉन पुट करना है. सो हाइड्रोजन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. सो डज ईच हाइड्रोजन हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स? सभी हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए. यस. नाउ व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स 5 थे, प्लस ये एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. सो 5 + 3 becomes 8. So this is how ammonia molecule is formed. Any questions, भैया मेरे, दीदी, anyone? This is how ammonia is formed. Confirm everyone? Ammonia clear? Let's go further. Keep drawing with me in your notebooks. Chemistry is more like mathematics. मैं आपसे बार बार ये कहते आ रहा हूँ. More you practice, the better you will become. The more you practice, the better you will become. Okay? So nitrogen, and put 3 hydrogen. Every hydrogen has got 1 electron, and nitrogen has got 5 electrons. So हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा. सो तीनों हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, एंड नाइट्रोजन के पास खुद के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. सो 5 6 7 8. सो दिस इज हाउ अमोनिया मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. Okay students, now let's make water. Mr. Water, H2O. Right, H2O. So let's make H2O. Write 1 oxygen and put 2 hydrogen near to it. आप चाहे इसको राइट लेफ्ट रखो, ऊपर नीचे रखो, योर चॉइस. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में how many electrons? 6. 1 2 3 4 5 6. रीज़न बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ. सो दोनों हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एंड ऑक्सीजन हैज़ गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन, प्लस एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ. सो टोटल विल बी 8. So this is how water molecule is formed. इस तरह वाटर मॉलिक्यूल बनता है स्टूडेंट्स. टेल मी, इज इट इजी? वाटर इजी? कंफर्म? या. आफ्टर वाटर वी गो फर्दर, एंड लेट्स कम टू कार्बन डाइऑक्साइड नाउ.
CO2. Let's come to carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड यू प्लीज स्टार्ट बिफोर मी. पुट वन कार्बन और दोनों साइड पे एक एक ऑक्सीजन रख दो. ऑन आइदर साइड पुट वन वन ऑक्सीजन. कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. सो ऑक्सीजन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सर? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2. परफेक्ट. और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन भी उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन भी उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्रॉसेस रख दिए. सो ऑक्सीजन हैज़ गॉट total 6 electrons of its own. 6 plus 2 8 and this oxygen also 6 plus 2 8. तो दोनों ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व स्टूडेंट्स. कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एक ऑक्सीजन के साथ और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा. सो दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. दैट्स हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. राइट. चलिए. बट सर वाई वी यूज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, हम लोग हमेशा कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो उसकी वैलेंसी ही डिसाइड करेगा. हाँ सर, यू हैव पुट 8 डॉट्स इन ऑक्सीजन. करेक्ट. दिस 2 डॉट्स विल नॉट कम. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी स्टूडेंट्स. आई लव इट. थैंक यू वेरी मच. It means you are paying attention and that's enough for me. Thanks a lot. So 6 electrons of oxygen plus 2 electrons of carbon becomes 8. मैंने भूल से पहले 10 बना दिए थे. Yeah. Next, let's begin students. Methane. CH4. Methane. Yes students, let's start. Carbon and put 4 hydrogens on each side. 1 2 3 4. On each side put 1 हाइड्रोजन. ठीक है. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, 1. सो ईच हाइड्रोजन 1 ईच. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. एंड कार्बन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो पुट 4 डॉट्स. राइट. So each hydrogen will share 1 electron. Each hydrogen will share 1 electron. So please check. हाइड्रोजन सबको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए ना. हाइड्रोजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट. एंड कार्बन्स प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व. खुद के 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ईच हाइड्रोजन विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. सो टोटल विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स. So this is methane, CH4, methane. Yes students, let's go further. Now moving on to sulfur molecule. How is a sulfur molecule electron dot structure prepared? Now sulfur molecule में students याद रखना, always 8 atoms are combined to each other in a ring type of structure. I repeat, they always form a ring type structure. So students, let's put S8. 8 atoms of sulfur. इसको ऐसे ring shape बना दो. See this. Make such ring shaped. Okay, please do it with me. So make such ring shaped. Now see students, सल्फर इसका एटॉमिक नंबर 16 है. मैं यहाँ पे साइड में 16 लिख रहा हूँ. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 286.
It has got 6 electrons in the outermost orbit. How many electrons in the outermost orbit? 6. How many electrons in the outermost orbit? 6. Okay, so what you do, students, put 6 electrons around sulfur. इस सल्फर के आसपास भी पुट 6 इलेक्ट्रॉन्स. सेम वे रिपीट इट फॉर ऑल. हर सल्फर के पास आप 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दीजिए. अराउंड ईच सल्फर पुट 6 इलेक्ट्रॉन्स. आई होप यू आर डूइंग विथ मी. Around each sulfur put 6 electrons. Now what to do? अब ये जो सल्फर है ना, फर्स्ट वन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं. इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेक्स्ट सल्फर, ऐसे. सो 6 + 2 8 कंप्लीट. यस. अब ये जो सेकंड वाला सल्फर है ना, इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नेक्स्ट सल्फर के. तो इस सल्फर में भी चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. अब ये वाला सल्फर है, इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नेक्स्ट सल्फर के. तो इसका भी 8 डन. नाउ दिस सल्फर हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इट विल टेक ऑफ नेक्स्ट. अगेन दिस सल्फर 2 इट विल टेक ऑफ नेक्स्ट. एंड सेम वे स्टूडेंट्स कंटिन्यू. आपका सल्फर मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा. सो ऑल इज वेल. गॉट इट क्लियर? सल्फर मॉलिक्यूल S8. ओके देन. सो हियर वी हैव डन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट करवाया हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन मॉलिक्यूल, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड लास्ट we discussed about sulfur. Right, students? Sir, it is called which atomic? Means I don't understand your means जैसे डायटोमिक, ट्राइटोमिक ऐसे पूछ रहे हो? एक्चुअली या इट इज़ 8 एटॉमिक, करेक्ट. बट जनरली 8 को हम ऑक्टा कहते हैं, ऑक्टा. बट ऑक्टा एटॉमिक इज नॉट अ केमिस्ट्री वर्ड. सो रादर देन सेइंग, हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे सल्फर मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर. वी विल जस्ट से इट इज S8. ओके, फाइन. So shall we proceed, sir? Which bond sulfur forms? It forms covalent bond. Which bond sulfur forms? It forms covalent bond. Yes. अच्छा स्टूडेंट्स, कोई मुझसे पूछ रहा है इट इज मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट. प्लीज टेल मी इट इज मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट. चेक करो कौन सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? हाँ एग्जैक्टली, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ऑब्वियसली डाइवेलेंट ही होगा. आप लोग मोनोवेलेंट क्यों लिख रहे हो? मैनी आर राइटिंग मोनोवेलेंट. ऑब्वियसली इट इज डाइवेलेंट. यस, वेरी नाइस, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग. अरे बस बस, ये यूट्यूब भी थक जाएगा. इतने चैट ना मैसेजेस मत डालो सर. इट्स ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. नाउ टॉकिंग अबाउट allotropes of carbon. Okay, talking about allotropes of carbon. Now see students, allotropes of carbon when I start. So please understand that these 3 are the allotropes of carbon. Graphite, as you all know, पेंसिल के लीड बनाने में काम आता है ग्रेफाइट. डायमंड इज़ अ वेरी प्रेशियस मेटल. और फ्यूचर में अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, देयर यू विल कम टू नो दैट दिस इज़ अ फ्यूल रन. ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है.
इसमें 60 एटम्स ऑफ कार्बन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, 60, इसलिए इसको C60 भी बोलते हैं। और ये इतना माइन्यूट होता है दैट यू कैन नॉट सी विथ योर आइज। तो ये तीनों कार्बन से ही बने होते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, राइट। Now, first I'll talk about graphite. Now see students, graphite, diamond and fullerene, all the three are made up of carbon, and because all of them are made up of carbon, सभी के chemical properties same होते हैं. They all have same chemical properties, but they have different physical properties. जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल को अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डालोगे इट विल ब्रेक, मतलब ग्रेफाइट इज ब्रिटल, बट डायमंड इज नॉट ब्रिटल. सो इन शॉर्ट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. सो एलोट्रॉप्स मतलब दे आर द स्ट्रक्चर्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. So these are the different structures of carbon having same chemical property but different physical property. ठीक है एवरीवन. तो इनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, इसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं. ओके, मैं एक बार फिर से लास्ट बार एक डेफिनेशन रिपीट कर लेता हूं. टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग different physical property even though their chemical properties are same. I repeat, physical properties are different and chemical properties are same. That's what we call allotropes, right? So exam में आ सकता है what are allotropes, give example. So allotropes are the different structures having same chemical property but different physical property. Example graphite, diamond, fullerene. ओके, और कुछ भी यहाँ से प्रिपेयर मत करना, जस्ट प्रिपेयर द डेफिनेशन, प्रिपेयर इट्स डेफिनेशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द एग्जाम्पल्स. या ओके स्टूडेंट्स, नाउ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. टॉकिंग अबाउट द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, राइट. अब स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है. ओके, somebody is asking me कि why fullerene is so called, मतलब इसका नाम fullerene क्यों है. ओके, एक्चुअली there is a person called बकमिन्स्टर फ्यूलर. एक इंसान है बकमिन्स्टर फ्यूलर. ये एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे. आई होप यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट. ये एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और ये पहले इंसान थे जिन्होंने डोम का आविष्कार किया. डोम पता है? डोम, बिल्डिंग के ऊपर जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, हम इसको डोम बोलते हैं. ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले डोम बनाया, तो इनके ऑनर में इसका नाम फ्यूलरन रखा गया. मिस्टर फ्यूलर के ऑनर में उसका नाम फ्यूलरन रखा गया. बट nobody will ask this in the exam, don't worry. Let's go, let's continue. Yes sir, US architect. Okay, got it, thank you. Now students are talking about the versatile nature of carbon. Now keep in mind that कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है. क्या एबिलिटी है? सुनिए. कार्बन कैन बॉन्ड विथ लॉट मेनी अदर कार्बन एटम्स. एक कार्बन दूसरे बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है. इट कैन मेक अ लॉन्ग चेन. हाउ मच लॉन्ग?
n टाइम्स लॉन्ग, n यू नो हम लोग कभी मैथ्स में सपोज करते हैं लेट x लेट n, so it can make n times long. So carbon can connect with other carbon and form a large molecule, and this property is called catenation. I repeat everybody, please listen to me. कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट करके इट कैन फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं ना, इट मे बी हैविंग अ लॉन्ग चेन. देखो मैं आपको एक ड्राइंग करके बताता हूँ. सो दिस इज अ लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल, this is a long chain compound, and this one, this is called a branched chain compound. देखो सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है. जब सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो तो उसको बोलते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड. कैन यू सी अ ब्रांच हियर? ये मेन स्टेम है और ये उसकी ब्रांच है. दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच्ड कंपाउंड, राइट. और देयर इज नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती सर. इट कैन बी n टाइम्स टू इंफिनिटी, एंड दिस इज अ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड. एंड ओवर हियर कार्बन ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है. क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को, पता है ना आपको? यस, दे आर कॉल्ड रिंग कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स. We can call them a ring structure or a cyclic structure. So carbon can make a long chain, it can make a long chain, it can make a branch chain, or it can even make a ring. So please look at the line everyone. Carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecule. This property is called catenation. These compounds may have long chain of carbon, branch chain of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. In addition, carbon atoms may be linked by single bond, double bond or triple bond. Okay, ये क्या है? Let's see. So ये दो कार्बन एटम है सर. अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, if they share only one electron, then we say that दोनों कार्बन के बीच में there is a single bond. If they share only single electron, then we say that दोनों के बीच में there is a single bond, और single bond को बोलते हैं saturated. अगर दो कार्बन के बीच में single bond है, we call it saturated. And if there is a double bond मतलब क्या बच्चा? डबल बॉन्ड मतलब दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ठीक है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. 4 में से 2 वैलेंसी उसकी यहाँ यूज्ड है. 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज है, बचे 2 इलेक्ट्रॉन सेम हियर ऑल्सो. सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. सब लोग डबल बॉन्ड समझ गए? डबल बॉन्ड मतलब बिटवीन टू कार्बन देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, between two carbon there is sharing of 2 electrons, and here between 2 carbon there is a sharing of only 1 electron. Similarly, अगर 2 कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दे बोथ शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी 3 वैलेंसी तो यहाँ पे यूज हो गई, रिमेन्स ओनली 1, एंड हियर ऑल्सो रिमेन्स ओनली 1. सो दिस इज सैचुरेटेड because there is a single bond. This is unsaturated because there is a double bond, and this is also unsaturated because there is a triple bond. So if there is a single bond between 2 carbon atoms, it is saturated, but if there is double or triple bond, it is called unsaturated. Am I clear, students? Everyone?
थैंक यू, एक्सीलेंट, यस। चलिए अब इसको रीड करते हैं। वो आएगा आगे बेटा, अभी मैं समझाता हूँ। कार्बन कैन फॉर्म्ड बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑल्सो, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सबके साथ वो बॉन्ड बना सकता है। आई टॉक अबाउट इट लेटर। Compounds of carbon which are linked by only single bond between carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bond between the carbon atoms are called unsaturated compounds. Saturated मतलब single bond and double or triple bond हो तो unsaturated. ठीक है। Now if I ask you true or false, catenation is a property of carbon. True or false? Catenation is a property of carbon. Catenation is a property of carbon. True or false? ओके, सो काफ़ी लोग मेरे को आंसर ट्रू दे रहे हैं, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी होता है। इट्स नॉट दैट कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज ओनली विथ कार्बन। हाँ, लेकिन एक बात है, सिलिकॉन कैन होल्ड ओनली 7 to 8 एटम्स टुगेदर। सिलिकॉन 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 ऐसे सिर्फ 7 या 8 एटम का चेन बन सकता है। ये सिर्फ 7 to 8 एटम्स तक लॉन्ग चेन बना सकता है। बट कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना, वो दी बेस्ट है, राइट। कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन, कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन, यस, आई एग्री, थैंक यू। सो कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। और एक और ख़ास बात स्टूडेंट्स, कि वो जो लॉन्ग चेन बनता है ना, वो बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल मीन्स it is not highly reactive, but silicon when it forms a long chain it is highly reactive and not stable, but carbon can make a very stable long bonds. So here I complete this first point of carbon, right? You kindly go through, if any problem talk to me. I am talking about the second point now. अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। I'll just show you here. Carbon has got 4 वैलेंसी, मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सो एट अ टाइम इट कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स। वो एक साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 4, इट कैन मेक 4 सिंगल बॉन्ड्स एट अ टाइम। एंड दिस बॉन्ड इट कैन मेक नॉट ओनली विथ हाइड्रोजन, it can be sulfur, it can be chlorine, it can be nitrogen, anything. It can make a bond with almost all the atoms of different elements. One more thing students, do you know ionic bond is strong or covalent bond is strong? Do you have an idea about it? Which one is more strong, ionic or covalent? Confirm, yes. Yes, it's certainly true that ionic bond is much stronger compared to covalent bond. But जितने भी covalent bonds हैं ना बेटा, जितने भी covalent bonds हैं, उन सब में कार्बन कार्बन के बीच में जो covalent bond होता है ना, वो सबसे strong होता है। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, अग्री, बट कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग क्या है? द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। वाई? The reason is the small size. The reason is the small size. किसका small size? कार्बन का small size. Okay, see, कार्बन का atomic number 6, electronic configuration 2,4. So please tell me, इसके पास how many orbits are there? 2 orbits are there. And because it has got 2 orbits, या 2 shells, 2 orbits or 2 shells, it is very small in size. So what will happen? जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा ना,
तो इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा और इसका न्यूक्लियस भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा. So because of the small size, it holds to the shared electrons quite tightly, and that's why among all the covalent bonds, carbon-carbon covalent bond is the strongest. Is that clear, everyone? Why carbon-carbon bond is the strongest covalent bond? The reason is the small size. So because of the small size, it can form a very strong bond. Right, students? Okay. For CBSE, the nomenclature will be omitted. Yes. अच्छा, why carbon has small size? Carbon has small size because उसके पास सिर्फ 2 shells होते हैं. It has got only 2 shells. Okay, everybody. चलिए, I hope you have enjoyed, and bye bye. Have a nice day.